Hello guys, welcome to YouTube channel Optimistic Learners. So in today's session we are going to start with mathematics question challenge series which is primarily focused on CDS and FTET examinations for the upcoming year. So these both are in important examinations, and when I speak about this questions challenge series, so in certainly we will be uploading a video for a particular question and sharing its approach, how it can be solved comprehensively, and with the practice if you solve these questions you can solve them in less than a minute, because in CDS as well as FCAT you only get a maximum time of 1 minute to solve each and every question. So this is a short video and I will be continuing it with this series, with a short video series, so that you can have a good idea about how to solve the questions during the examination timelines. So moving forward, let's start with the questions. So before we begin with the actual questions, I would like to request everyone to subscribe my YouTube channel as well as like and comment on the video regarding if you are finding this useful content. So let's begin with the question number one. So the question says, in an examination, 50% of the candidates failed in English, 40% failed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. The percentage of candidates who passed in both English and Hindi is. So guys, this is a question which is a very basic level question, and these questions are to be solved in less than 30 seconds, and these are the high scoring marks. So that you can save your time in solving the questions that are of the advanced algebra or the trigonometric level. So this question belongs to the unit of percentage. Now I would like to request you to pause this video and solve it and type your answer in the comment section. So I think आप सबने ट्राई किया और अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. In this video I will be sharing with you two different approaches to solve this question. जो पहली अप्रोच है वो रहेगी जिससे हम नॉर्मली फर्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ़ वी आर हैविंग लैक ऑफ प्रैक्टिस से काफ़ी टाइम हो गया सॉल्व किए हुए, सो फर्स्ट अप्रोच वो है ताकि आपको एक होल्ड आ जाए क्वेश्चंस को लगे कैसे सॉल्व करना होता है. ठीक है. सेकंड अप्रोच रहेगी कैसे हम एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट अप्रोच. हियर यू सी दैट फर्स्ट वी कंसीडर जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पूरे जिन्होंने एग्जाम्स दिया है इंग्लिश हिंदी, सो वो है एक्स. ठीक है. सपोज 100 भी है. नाउ इफ वी से 100 बिकॉज यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, सो वी कैन एब्सोल्युटली से कि एक एब्सोल्यूट नंबर मान लेते हैं कि 100 है वो. ठीक है. अब 100 में से 50 स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश में फेल हुए हैं, 40 हिंदी में फेल हुए हैं, एंड 15 आर फेल्ड इन बोथ. सो इफ यू कैलकुलेट एंड ऐड ऑल दीज इट कम्स आउट टू 115. मतलब 50 जो हमारा इंग्लिश का है, 50 50 ये वाला पार्ट. ठीक है. 50 ये वाला पार्ट और 40 ये वाला. 50 plus 40 plus 15. This turns out to be how much? 115x. बट एक्चुअल में हमारे टोटल कितने हैं? टोटल तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 ही होने चाहिए. सो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा 15 है वो हमारे वो हैं जो दोनों में फेल हुए हैं. सो इट मीन्स जो एक्स्ट्रा 15 है वो काउंट हो रहे हैं इंग्लिश वालों में भी, जो 50% है इसमें भी और 40% है इसमें भी. सो इट मीन्स हमने दोनों में काउंट नहीं करना 15 को, सिर्फ एक में काउंट करना है. So that is why we will subtract this 15 from one of the numbers, either from English or either from Hindi. So we get the number of students, those uh, those who failed either in English or Hindi or both, those come out to be 0.75x or 75 if we assume that total number of students were 100. ठीक है. तो 75 आ गया. 75 फेल हुए हैं, सो इट मीन्स पास कितने हुए हैं? 25. तो 25 पास हुए मतलब तो परसेंटेज कितना हो गया? 25%. ठीक है. मेरी प्रेफरेंस क्या रहती है कि अगर आप होल नंबर में वैल्यूज लेकर चलो, जब तक क्वेश्चन में परसेंटेज टर्म्स में बात हो रही है आप इसको होल नंबर में लेकर चलो तो आपको और बेनिफिट रहेगा. ठीक है. तो जब आप होल नंबर में लेकर चलते हो तो परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है. सो इसका आंसर आएगा 25%. दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिससे हम हमेशा सॉल्व करते हैं, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. इसका एक अप्रोच और है, दैट इज वेन डायग्राम. अब वेन डायग्राम से हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, उसको भी देख लेते हैं. सो ये देखो जो बाहर रेक्टेंगल बना हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स कि ये आपका
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब सैंपल साइज है। अब इन सर्कल्स के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर का जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन दिस इंग्लिश एंड हिंदी एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो अब हमारे पास डेटा है, इंग्लिश में 50% फेल हुए हैं, सो इट मीन्स जो ये वाला सर्कल है दिस रिप्रेजेंट 50%। 40% हिंदी में फेल हुए हैं, तो ये कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट्स 40। ठीक है, ये 50 है इंग्लिश वाला, ये 40 है, एंड द कॉमन एरिया इज 15x। ठीक है, सो अभी कॉमन एरिया दोनों में इंक्लूड हो रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो अगर हम इस कंप्लीट एरिया को 40 मानते हैं, 15 को हम हिंदी में इंक्लूड कर लेते हैं, सो इंग्लिश में से हम 15 रिमूव कर देंगे, दैट टर्न्स आउट टू बी 35। सो दिस टर्म्स आउट टू बी हाउ मच, 100। 35 प्लस 15 प्लस 40, 35 प्लस 15 एंड 40, क्योंकि 40 यहाँ भी इंक्लूड है 15 के अंदर, तो यहाँ से भी हमें 15 रिमूव करना पड़ेगा, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 25, जो हिंदी वाला पार्ट है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 35 प्लस 25 इज 60 प्लस 15 इज 75। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं वो है 75। पास कितने हुए हैं, जो ये अपना ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है दिस इज पासिंग विच इज 15, विच इज 25 सॉरी। सो वेन डायग्राम से काफी आसान हुआ, हम विजुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी है इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन रेगुलरली। गाइज, इस वाली वीडियो का मोटिव यही है कि आप, एक क्वेश्चन मैं सैंपल दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अगर आप क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बैंक अगर आप प्रोवाइड करवा सकते हो तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, आपको कोई भी और किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत है, मैं अपना इसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऐड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर लो, अपना डाउट वगैरह जो भी है वहां पोस्ट करते रहना, और वहां पे आपको उसी टाइम आपका सॉल्यूशन में मिल जाएगा। कुछ भी उसमें क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे वहीं पे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो, आई होप यू हैव लाइक दिस कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।